أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما 107.6 FM یہ ریڈیو ڈون کی لائیو نشریات آپ سن رہے ہیں مسرت طارق کے ساتھ۔ میرا بہت ہی مؤدبانہ مخلصانہ اور پیار بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ بخیریت ہوں گی اور میری آواز نے آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک پایا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمارا یوٹیوب کا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا دن بہت ہی خوبصورت دن گزرا، ماشاءاللہ دھوپ رہی سارا دن، بڑا اچھا دن گزرا۔ شام میں تھوڑی تھوڑی بارش ہوئی، لیکن آپ کو معلوم ہے سامعین، آپ کو مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اور رجب کا مہینہ ہمارے لیے ایک بہت اہمیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ رجب کے بعد شعبان اور پھر اس کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ رجب کے مہینے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک سیڈ کو بونا ہے، آپ نے ایک سیڈ کو اپنی جو آپ کے دل کی اور دماغ کی کیاری ہے نا، اس میں اپنے اعمال سے وہ سیڈ جو ہے نا اس کو آپ نے بونا ہے اور اس میں کیاری میں ڈالنا ہے، اور وہ اس کو اس کی پرورش کرنی ہے، اس کی نگہداشت کرنی ہے، اور پھر شعبان کے مہینے میں اس کی کونپلیں پھوٹیں گی انشاءاللہ، اس میں بہار آئے گی، اور رمضان کے مہینے میں اس پہ فروٹ آئے گا جو آپ نے رمضان کے مہینے میں وہ فروٹ آپ نے حاصل کرنا ہے۔ اور ہمارا جو الٹیمیٹ، ہمارا جو مقصد ہے، جو ہمارا موٹیو ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے وہ فروٹ حاصل کرنا ہے، اور جتنا فروٹ وہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہوگا وہی فروٹ ہمیں جنت کی طرف لے کے جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ رجب کے مہینے میں آپ نے اپنے اعمال سے، اپنی خیرات سے، اپنے صدقات سے، اپنی عبادت سے جو ہے نا اس میں بیج کو بونا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا اچھا بیج بویا جائے گا نا، بیج کی قسمیں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہے نا کہ لوگ جو کیاریوں میں بیج ڈالتے ہیں، کسی کے پھول جل آتے ہیں، کسی کے آتے ہی نہیں ہیں۔ تو بیج کی جتنی بھی جو ہے نا نسل خوبصورت ہوگی، طاقتور ہوگی، پیاری ہوگی، اتنا ہی اس کے اوپر پودا آئے گا، اور جتنا پودا نشو نما کرے گا اتنا ہی بہترین وہ فروٹ دے گا آپ کو، اور وہ فروٹ آپ نے کھانا ہے، اور وہ فروٹ آپ کو جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ تو یہ تو میری تھوڑی سی میری تمہید تھی اپنے آنے والے دنوں کے بارے میں۔ بڑا مبارک یہ دن ہے اور بڑے کمائی والے دن ہیں، آپ نے اس میں خوب رج کے کمائی کرنی ہے بس، اور یہ کمائی جو ہے نا یہی ہمارے کام آنی ہے، اور ہمارے کام کچھ بھی نہیں آنا۔ یہ دولت، یہ دنیا، یہ کاروبار، یہ کاریں، یہ مکان، یہ محلات، یہ سب یہیں رہ جائیں گے۔ اور جب میں یہ بات کر رہی ہوں تو میں آپ کو بتاؤں، میں اتنے بڑے بڑے فرعونوں کے محل دیکھ کے آئی ہوں، اتنے بڑے وقت کے فرعون جو کہتے تھے کہ ہمیں موت آنی ہی نہیں، اور اگر آنی بھی ہے تو ہمارے ٹوم بناؤ، ہمیں ٹوم میں رکھو۔ میں بات کر رہی ہوں سامعین کہ میں گئی تھی ایجپٹ، اور ایجپٹ جا کے میں نے دیکھا، اور ہر وقت اللہ کی یاد میں رہی ہوں، اور اللہ سے توبہ اور معافی مانگتی رہی ہوں کہ ہم دنیاوی چیزوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ہم دنیاوی چیزوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے کاروبار کو، اپنی کاروں کو، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہر چیز بہترین سے بہترین ہو، لیکن وہ بہترین سے بہترین جو چیز ہے وہ ہمارے کسی کام نہیں آنے والی، دنیاوی آرام کے لیے ہوگی، لیکن ہماری دینوی زندگی کے لیے وہ ہمیں کتنا کام دے گی، اس کا ہم نے جائزہ لینا ہے، اس کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے سوچنا ہے، اس کے لیے ہم نے پرکھنا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، 4 دن کا میلہ ہے، بس کھا لو اڑا لو۔ یہ ہماری، یہ ان فرعونوں کو دیکھ کے میرے دل میں ہر وقت میرا دل ایسے ہو گیا جیسے
मैं आपको सही बता रही हूँ, जैसे मोम का बन गया मेरा दिल, मोम हो गया और मुझे यूँ लग रहा था ये मेरा दिल जो है ना बस पिचक जाएगा। मैं कहती क्या इंसान इंसान अपने आप को समझता क्या है? हुँ? तो ख़ैर बहरहाल मैं थोड़ी-सी आपको ना पहले थोड़ी-सी इजिप्ट की सैर कराऊँगी, ऐसे ही छोटी-सी मामूली-सी आपको बताने के लिए और फिर उसके बाद थोड़ा-सा हम खाने खाने खिलाने के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि ये मुसर्रत का दस्तरख़्वान है और मैं जो है ना खाने की चीज़ें भी वो भी सब इजिप्ट का मैंने वहाँ से तस्वीरें ली हैं जो हमारे रेस्टोरेंट में बनता था। अब मैंने उनसे गुज़ारिश की थी कि मुझे अपने रेस्टोरेंट में जाने दें और मुझे कुछ कर तो वो कहने लगे कि ये हमारे प्रिंसिपल के खिलाफ है, हम ये ऐसे कर नहीं सकते हैं। तस्वीरें लेने के लिए भी उन्होंने कहा था कि आप डिनर टाइम से पहले आएँ और ताकि वहाँ पे लोग ना हों। तो लोग मैं गई थी तो लोग तो थे 1-2 चलें अल्लाह करे कि वो कोई ऐसी अहमियत ना रखते हों और किसी को कोई एतराज़ ना हो। बहरहाल मैंने अपनी तरफ से तो बड़ी एहतियात के साथ कुछ तस्वीरें उतारी हैं सिर्फ़ आपके लिए। ये रेडियो डॉन के लिए क्योंकि मैं रेडियो डॉन के लिए बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ कि अल्लाह ताला इस रेडियो को तरक्की दे और ये जो इसके काम करने वाले हैं, जो इसके सामीन हैं, जो इसके वो अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, उनको तरक्की हो और रेडियो डॉन की भी तरक्की हो और अल्लाह ताला ये इसको 25 साल से मैं इसे सर्व कर रही हूँ और 25 साल हो गए हैं और एक कुछ ना कुछ तो लगाव हो ही जाता है ना। तो मुझे इस रेडियो से बहुत लगाव है और मैंने हर किस्म का दौर देखा है, 25 साल कोई छोटी-सी उम्र नहीं होती। तो बहरहाल चलते हैं अब हम हमारी पहली जो तस्वीर है रास्ते में देखें हमें वहाँ पे एक मस्जिद भी नज़र आई है, देखिए बहुत खूबसूरत मस्जिद है और मुझे इसका कोई नाम नहीं पता है, इसका मैं नहीं उतर नहीं सकी क्योंकि मैं रास्ते में थी और मैंने वहाँ से जब वो बस हमारी खड़ी हुई तो मैंने तस्वीर ले ली थी। तो थोड़ा-सा इजिप्ट के बारे में मैं आपको बताती हूँ सामईन कि इजिप्ट जो है ना बेसिकली 90% सहरा है। यानी सिर्फ़ 10% जो है ना उसका जो है ना आबादी है और वो आबादी जो है ना रिवर नाइल के आस-पास दोनों साइडों पे है और और जहाँ ज और जो रिवर नाइल है ना उसमें मेडिटेरेनियन सी और रेड सी दोनों आके गिरते हैं उसमें रिवर नाइल में। इसलिए रिवर नाइल दुनिया का सबसे लंबा दरिया है और जिसमें ना कभी सूखा है और ना उसमें कभी तुग़यानी वो इतना लंबा कितने मुझे मुझे सही पता नहीं है शायद मैं गड़बड़ ना कर जाऊँ 300 माइल से ज़्यादा वो लंबा है और और अगर कहा जाता है कि इफ देयर वाज़ नो नाइल, देयर वाज़ नो इजिप्ट। नाइल जो है ना रिवर नाइल इनकी रोटी है, ब्रेड एंड बटर है इनका। और यहाँ से आप हैरान हो जाएँ कि वो रिवर में एक वक़्त में 5-5 शिप जो है ना आगे-पीछे ऐसे आगे-पीछे नहीं एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद यानी जब वहाँ पे हमने 6 दिन लक्सोर से शिप लिया था। अभी मैं आपको लेके जाऊँगी अब जहाँ हम पिरामिड्स की तरफ, लेकिन पहले मैं थोड़ा-सा ये आपको बताऊँ कि हमने 6 दिन जो है ना वो लक्सोर से शिप में गुज़ारे और मैं ना अपने कमरे से मैं मेरा मेरा कमरा अकेली का कमरा था। मैंने कहा था मुझे अकेली को चाहिए क्योंकि मुझे रात को उठना,
पढ़ना, वुज़ू करने, कब प मैं अपने मशगूल रही अपनी इबादत में, मैंने उसका बिल्कुल वो नहीं किया, कोई उसमें से कोई चीज़ जो है ना, कोई रियायत नहीं की। तो बहरहाल मैं अपनी अपने कमरे में लेटी हुई थी, मैं देख रही थी, मैंने पर्दा हटाया तो दरिया की मौजें इधर-उधर, इधर-उधर, मज़ा आ रहा था बड़ा, मैंने कहा चलो लेट गए। थोड़ी देर के बाद मैं उठी तो क्या देखती हूँ, मैंने उसी कर्टन में से देखती हूँ तो एक और खिड़की नज़र आई। हाय! ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? मुझे एकदम से, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। अच्छा जी, वो दरअसल एक और शिप आके हमारे शिप के साथ लगा और वो उसका बेडरूम और मेरे बेडरूम में 1 गज़ का फ़ासला था और मैं देख रही थी कि उनके 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 बिस्तर के ऊपर अभी टैची केस पड़े हुए थे, शायद वो अभी नए-नए जो भी आए था, ख़ैर मैंने तो बाबा जल्दी से अपना कर्टन बंद कर दिया। मैंने कहा पता नहीं वो बेचारे किस हालत में होंगे, कैसे होंगे, आई डोंट वांट टू नो। अच्छा, तो ये ऐसे होता था और जब हम उतरे अपने शिप से कहीं जाने की, लक्सोर टेम्पल देखने के लिए हमने जाना था, तो जब हम अपने शिप से उतरे, अपने शिप से उतर के दूसरे में, दूसरे से उतर के तीसरे में, तीसरे से उतर के चौथे में, चौथे से 5 में, ये अंदाज़ा लगाएँ कि 5 शिप ऐसे एक साथ लगे हुए थे और उसके बाद हम उतर के सड़क पे गए और ये आप अंदाज़ा करें, ये अभी दरिया है, दरियाए नील। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है, इसको मोजज़ाती तौर पे ये दरिया जो है ना, इजिप्ट को कायम दायम रखे हुए है। जितने लोग वहाँ पे काम करते हैं, एक शाम की बात है कि मुझे आवाज़ आई, उस दिन मेरे मेरे शिप वो हमारा अकेला शिप था हमारा, कोई आस-पास और दूसरा शिप नहीं था। तो आवाज़ आई, "हेलो, हेलो, हेलो।" तो मैं कहूँ या अल्लाह! ये कहाँ से आवाज़ आ रही है? मेरे नेक्स्ट डोर से आ रही है क्योंकि पतली-पतली दीवारें हैं, गत्ते की दीवारें थी कि क्या थी ऐसी। मैंने कहा ये किसकी आवाज़ आ रही है? तो वो हेलो, हेलो, वो तेज़ ही, फिर मैं उठी, मैंने जब देखा, मैंने क्या देखा कि हमारे शिप के साथ 2 कश्तियाँ छोटी-छोटी लगी हुई हैं और उसमें आदमी चीज़ें बेच रहे हैं। उसमें वो दिखा रहा है, ये देख लो, ये स्कार्फ, ये देखो टेबल क्लॉथ, ये देखो ये हार, ये काँटे। हाय! मैंने कहा ये तो इन्होंने इस तरह बिज़नेस ला और इतने एक्सपर्ट चीज़ें वो ऐसे निशाना लगा के फेंकते थे, इतने मज़े से निशाना लगा के फेंकते थे कि वो आप मिस ही नहीं कर सकते थे। अच्छा, फिर वो पीछे पड़ जाते हैं, ले लो, ले लो। यानी वो $1 की चीज़ जो होती है ना, $1 का मतलब है कि इजिप्ट के इजिप्ट के 6 इजिप्ट पाउंड 6, एक एक 1 पाउंड में इजिप्ट के 6 पाउंड, ठीक है? तो वो यकीन करें, वो $1 से फिर वो 2 इजिप्शियन पाउंड के दे के जा जाते हैं, चले जाते हैं। यानी वो वही पाकिस्तानियों वाला जो हिसाब है ना, वही करते हैं लोग कि वो हैगलिंग करते हैं। वो $1 की चीज़ जो आधे डॉलर में वो दे देते हैं बेचारे, लेकिन वो उनके लिए वो आधा डॉलर भी जो है ना, 1 दिन की खुराक है। पूरे 1 दिन की फैमिली का जो है ना खाना-पीना है, $1। तो बहरहाल ये चीज़ मैंने देखी और ये भी पता चला कि ये दुनिया का छठा मुल्क है जिसकी आबादी के लिहाज से अम, शायद 11 करोड़ की आबादी है या इससे भी ज़्यादा है। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसका रक़बा भी बहुत बड़ा है। दो के जो ना सहरा है, 90% जो है ना वो सहरा है, 10% आबादी है और वो सहरा उन फ़िरौनों ने आबाद किया हुआ है। वो जितने टूरिस्ट जाते हैं वो सहरा में जाते हैं। चलिए अब मैं देखती हूँ हमारी अगर अगली ये देखें, हाँ जी, ये देखें। अच्छा सामईन, ये नाज़रीन, ये देखिए, ये वाली जो थी ना ये जो जब मैं दाखिल हुई हूँ ना, वो ना पिरामिड्स का बाकायदा एक एंट्री बनाई हुई है, बहुत खूबसूरत। वो ये नहीं है कि वो जी सहरा है और वो ऐसे ही पिरामिड्स आपको दिखा देंगे, उसकी बहुत बड़ी टिकट है। पहले आप टिकट लेते हैं, फिर आप अंदर जाते हैं। अच्छा यहाँ देखिए, अब गौर से देखें तो लिखा हुआ है, मैन फियर्स टाइम, मैन फियर्स टाइम, बट टाइम फियर्स पिरामिड्स, द पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। इस चीज़ ने ना इतना पोएटिक टाइप का ये है ना सेंटेंस कि मुझे ये मैं इसमें कुछ मिनट के लिए मैं इसमें डूब गई। मैंने कहा कि
हाँ, इंसान को टाइम का तो खतरा रहता है हर वक़्त, पता नहीं मेरा अगला वक़्त कैसा आना है। कहते हैं ना हम कि अभी तो जो है, पता नहीं अगला वेला किहो जिहा आना है ना? तो वेले से हम डरते हैं, टाइम से हम डरते हैं, लेकिन टाइम जो है ना, उसको वो पिरामिड्स के सामने खड़ा और कह रहा है कि मैं तेरे से डरता हूँ बाबा। और वो 4000 साल पुराने पिरामिड जो हैं, अपनी जो हाइट थी उनकी, उस हाइट से 27 मीटर हाइट उसकी लूज़ हो गई है। अब देखिए ना, एक इंसान होता है, मैं जो थी, जब मैं अपनी जवानी में 5 फुट 3 इंच थी, ठीक है? जब मैं बच्चों वाली हुई ना, तो मेरी हाइट 5 फुट 2 हो गई। अब मेरी हाइट 5 फुट एक एक पता नहीं इंच है या नहीं है, 5 फुट है। तो ये इर्तिका, और ये जो है ना, क्या कहता है उस इर्तिका का दूसरा जो है क्या, वो जो है ना, इंसान के साथ होता है, इसी तरह ये चीज़ों के साथ भी होता है। अब वो पिरामिड्स धँस गए हैं, या पिरामिड्स की जो ऊपर स्किन है वो सारी जो होती है शेड हो गई है, और उनमें तो देखें, अच्छा जी, अच्छा जब वहाँ पहुँचे हम, तो मैंने आपको बताया था कि वो देखें, आप देखिए, ये मैं आपको बताना ये देखिए पिरामिड्स, इस वक़्त ये पिरामिड्स नमूदार होने शुरू हो गए थे, क्योंकि इस वक़्त वहाँ सुबह के 7:30 8 बज गए थे, और हल्की-सी सनशाइन जो है ना, वो नज़र आने शुरू हो गए थे। मुझे ना, अब आपको पता है मैं पोएट्री लिखती हूँ, और मेरे दिमाग में पोएट्री जो है ना सवार रहती है, कुछ ना कुछ निकल जाता है। मुझे एकदम से ना, ये जो ऐसे लगा जैसे मैंने इनको नाम दे दिया। मैंने इनको नाम दिया ब्राइड्स ऑफ गीज़ा। जैसे दुल्हन अपने सर से नकाब आहिस्ता-आहिस्ता सरकाती है ना, बिल्कुल वो ये दुल्हन बन के हमारे सामने पेश हुए। अब ये मुझे पता है, एक ज़माना था, मुझे पता है 60 और 70s के दरमियान दुल्हनों को एक ख़बत हो गया था कि हमारे नायलॉन के दुपट्टे हों, जिनमें से हमारा चेहरा नज़र आता हो। बिल्कुल ये नायलॉन का दुपट्टा पहना हुआ है इस वक़्त इसने, पिरामिड ने। और मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने उसी वक़्त 1-2 शेर जो ना लिखने दिमाग में आए, लेकिन लिखे नहीं हैं, वो मैं लिखूँगी ज़रूर, कि ये अल्लाह ताला ने हमें कहा कि तुम आए हो ना, ज़रा और तजस्सुस रखो थोड़ा-सा। मैं आहिस्ता-आहिस्ता तुम्हारे आगे रिवील करूँगा। अब पहले तो बहुत ज़्यादा मायूसी थी, अब थोड़ी मायूसी कम हो गई कि कुछ चलो, कुछ शेड सा तो नज़र आ रहा है ना। तो उसके बाद जो हम देखें, आप ये देखें जी, अब अल्लाह ने थोड़ा-सा ये करम कर दिया, अब हमें पूरा पिरामिड्स नज़र आ रहा है। अच्छा, अब देखें आपको, ये जो ये तो अल्लाह का वाक़ई, आपको पता है दुनिया के 7 अजूबे थे, हैं नहीं है अब, थे, 7 अजूबे थे। और जब मैं अपनी जवानी के टाइम में, अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने में बहुत कुछ हमें याद किया था। लेकिन मुझे सिर्फ़ एक वो हैंगिंग गार्डन्स और बाबिलोन ये याद रह गया था, और या ये पिरामिड्स याद, और दूसरे जो थे ना, वो किसी ने कहा कि वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी था, और किसी ने कहा वो वॉल ऑफ चाइना भी, लेकिन वो नहीं है। आपको मैं बता दूँ सामईन नाज़रीन, के दुनिया के अजूबों में जो एक अजूबा रह गया है ना, वो ये आपके सामने है, आपकी नज़र के सामने है। इसके अलावा, इसके बाद जो 6 अजूबे वो ख़त्म हो चुके हैं। और इसको पता नहीं, ये तो रहेगा शायद, ये रहती दुनिया तक रहेगा। इसने कितने ज़लज़ले देखे होंगे, कितने तूफ़ान, कितनी आँधियाँ, कितनी बारिशें, क्या कुछ देखा होगा इसने, हुँ? लेकिन ये खड़ा है। अच्छा, इसका एक-एक जो ब्रिक है ना, वो अ अ 20 टन तक, आप समझ लें, जो मैक्सिमम जो ब्रिक है वो 20 टन का है, और छोटे-छोटे 1 एंड हाफ टन के हैं। और इनको यहाँ पे ये मिले भी नहीं, ये इनको जाके तो असवान से लाने पड़े, और असवान जो है ना 350 मील दूर है। ज़रा सोचिए ये काम हुआ कैसे? ना उस वक़्त कोई रेड़े थे, ना गड्डियाँ थी, ना कुछ मोटर थी। कि कहाँ से इन्होंने ये इंसान को, मेरे दिमाग में बस सिर्फ एक ही इसकी जो ना एक डेफिनेशन आती है। लोग कहते हैं एलियन आए होंगे, एलियन ने काम कर दिया होगा, लोग कहते हैं मेरे दिमाग में एक डेफिनेशन आती है कि आपको पता है ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, उनके लिए जो माउंटेन्स थी ना, पहाड़ मोम कर दिए थे। और उन्होंने पहाड़ों के अंदर मकान बनाए थे, और एक-एक दिन में वो मकान और खिड़कियाँ बनाते थे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने वो मोम कर दिए थे, अपनी अपनी रज़ा से उनके लिए आसानी कर दी थी, पत्थर उनके लिए मोम कर दिया था।
تو یہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ جو ٹنز والے یہ پتھر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو روئی کی طرح سے ہلکا کر دیا ہو اور ان لوگوں نے اٹھا کے اس کو بنا لیا؟ اور ایک نہیں ہے، یہ 3 بڑے پیرامڈز ہیں اور اس کے ساتھ 3 چھوٹے جو ان کی بیویاں تھیں نا، یہ اس زمانے کے فرعونوں کی، یہ ان کی بیویوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے 3 بنے ہوئے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا، نظر آئے گا، وہ ایک بڑے پیرامڈ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے 3 اور پیرامڈز ہیں رائٹ سائڈ پہ، آپ دیکھیں یہ بچے بالکل چھوٹے چھوٹے۔ تو یہ نا یہ ان کی بیویوں کے، اور اس کا مقصد پتہ کیا تھا؟ ان فرعونوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم آج مر جائیں گے لیکن ہم مر نہیں سکتے، ہم پھر اٹھیں گے۔ تو انہوں نے پھر جو اگلی میں آپ دی تھی، یہ دیکھیں یہ سفنکس جو ہے، یہ اپیرنٹلی یہ 2 ہوتے تھے، لیکن ایک کا تو میرا خیال ہے خاتمہ ہو چکا ہے، وہ نظر نہیں آتا، اور دوسرا یہ، اور اس کا جو ایسے تھا کہ اس کی دھڑ جو تھا نا وہ شیر کا، لائن کا، اور جو شکل ہے وہ اس وقت کے ٹائم کے فرعون کی تھی۔ اور ان کا بنانے کا اور رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہے نا یہ شیر ہماری حفاظت کریں گے۔ اچھا، ان کا منہ ادھر ہے، پیرامڈز ان کے پیچھے ہیں، تو جیسے گارڈ بیٹھا ہوتا ہے نا، کوٹھی پیچھے ہوتی ہے نا، تو آگے گارڈ بیٹھا ہوتا ہے منہ کر کے، بالکل یہ گارڈ بٹھائے تھے کہ ان کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی آفت نہیں آئے گی، ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی اس زمانے کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ جاؤ اور دیکھو، اور جا کے دیکھو کہ یہ فرعونوں نے کیا سوچا تھا۔ اگر آپ کو آواز آئے گی نا، یہ ہمارا گارڈ ہے، اس کا نام احمد ہے، اور اس نے بہت ہی اچھا ہمیں یہ جو ہے نا یہ پھر یہ ہے ٹیمپل آف لکسور۔ اچھا، یہ یا اللہ پتہ کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ جو کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو۔ میں نے احمد کو کہا کہ یہ یا اللہ ہے یا یلا ہے، تو کہتا ہے This doesn't make any spot been dedicated to be what we call the Roman altar. During the Roman era, they had it like a Roman altar. They cased the walls with plaster, and they drew some of the Roman features, and it was used in the Coptic era as well. Look at the features right there. You would tell that they are not pharaonic from the look, and even the outfits, the garments, very obvious. The Roman dresses, the Roman costumes, right there. Even in the Coptic era, it was used as a church as well. And they blocked this gate leading to the rest of the temple, and they had those like a representation of monks. The shell imitation, which is a Coptic Christian symbol, right there, that you can see in churches. And even there were supposed to be halos on around the heads, but the heads are not there. If you focus, you will see the halo I'm talking about, especially on this one to the left. They are representation of saints. Paintings are very obvious. So what they did, sorry, go on. That it was used during the Coptic era as a church as well, and they blocked this gate, and they had it as a sanctuary. And یہ دیکھیں یہ کالمز کیسے بنائے ہوں گے، یہ دیکھیں ان کی تراش کیسے کی ہوگی۔ And they made this shell over here, and these kind of shells are located in the sanctuaries of the churches. What proves that there are many blocks being built from outside, upside down.
them from they belonging to promises. Even the cartouche of promises is upside down. Yes. And the goose right there is upside down. They dismantled many blocks from outside for building the Roman altar, which was used as a church after that. The soul So many thousands of years. तो सामने ये तो मैंने आपको ना थोड़ी सी झलक दिखाई है वहाँ के रैमजी एक्चुअली एक था रैमजी द फर्स्ट रैमजी द सेकंड और रैमजी द थर्ड ये तीन जो थे ना फिरौन अच्छा फिरौन एक नहीं था फिरौन बहुत सारे थे फिरौन का मतलब था ताकतवर बादशाह या किंग ठीक है हुकूमत करने वाला और ये जो रैमजी तो सेकंड था ना वो वाला वो फिरौन था जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले थे बास्केट में और उनके साथ उनकी बीवी आसिया थी एक जगह मैंने उनका मुजस्समा आपको पता है वहां पे एक नया म्यूजियम खुला है 1 साल हुआ है इतना बड़ा म्यूजियम है कि आप कभी ऐसा म्यूजियम दुनिया में है ही नहीं क्योंकि उसके 3 फ्लोर हैं और एक फ्लोर के ऊपर चल के 1 मील 1.5 मील तक आप मैं तो थक गई थी मैंने कहा भी मुझे अब दूसरे फ्लोर पे नहीं जाना सच में मैं इतना थक गई थी कि मैंने कहा मैं मेरे में अब हिम्मत नहीं है कि मैं और कुछ देखूंगी तो बस वहां ऊपर जाते कुछ और भी देख सकते थे These vessels and the vases would be full of honey, milk, wine, beer, right? And the things they used to produce in those days. Ornaments full of all kind of drink. That's besides the different other things like meat. And I'm going to show you example of platters and offerings and pieces right there. The sanctuary area, unfortunately, we can't do that. We like that visual. In the middle of this part, Alexander the Great gave the orders for building the old shrine. रिकॉर्ड करके क्या है अलेक्जेंडर द ग्रेट When you get closer, you will know the difference between the stones. between the reliefs, the original one, high reliefs, and those behind me for getting back to the time of Alexander the Great. Even the dismantled columns. This is what remains of one of the bases. Sure. Another one on the other side, and 2 more at the other end, the other side of the shrine. He is represented in front of Amun-Ra. Here he is, Yeah. holding the scepter, the key of life, and he is leading himself, or his double is taking him, because they believe that there is a double of any person, the ka, as they called it, beside the soul, and that's in many beliefs as well. Right? Everyone is having a soul and a double, invisible. Right? He's holding his hand, or his double is holding his hand. He is giving him eternity. He's wearing the crown of Lower Egypt and introduced to be to God Amun-Ra. Right? And here is his name, Alexandris. It is time for you to have another lesson in hieroglyphics. How did we know that is him? He's like a pharaoh. It's all about his name. The A letter is this falcon in front of you. A. Lion is L. L. A basket of bread is K. Alek. Vowels were not that many. Okay? A rope and a knot in the middle is S. Alex. Waves of water is N. A hand is D. Alexander. A mouth is R. Alexander. And feather is I or Y or E. Alexandri. Another is like this one, Alexandris. Never been an ancient Egyptian name. It is the name of the very famous Alexander
the Macedonian. He's giving more offerings in the the fertility version of God Amon-Ra, that's very obvious. And the rest of the details of giving more offerings. Look at the huge numbers. अच्छा ये देखें ये वाला ये उन्होंने उसी वक्त ताज़ा ताज़ा बकलावा बनाया था और ये मुझे पता चला कि इसमें ज़्यादातर वो जो जिसे हम पेस्ट्री कहते हैं ना क्या नाम उसका होता है एनीवे पेस्ट्री है और उसके अंदर सेवियां और पिस्ताशू और फिर उसको जब बना के तो फिर उसको ना सिरप में डाल देते हैं और वो उसी वक्त निकाल के कर लेते हैं और ये खासी मज़ेदार होती है लेकिन बस बंदा थोड़ी खाए तो बेहतर है। ये देखें ये लगते तो ऐसे हैं जैसे ये लड्डू बने हों लेकिन ये ऐसे हैं जैसे दाल के मूंगी की दाल के लड्डू बनाए हुए हैं और ये मीठे हैं बड़े मज़ेदार हैं। पीछे जो चीज़ें पड़ी हैं वो भी लड्डू की तरह से हैं। आपने वो खाए होंगे उनको क्या कहते हैं मराठे ही कहते हैं इन्हें। वो जो आपने खाए होंगे तो वो उनके ऊपर इसी तरह तिल लगे होते हैं तो ये चावल के आटे के बने हुए हैं और ये बड़े ही मज़ेदार हैं बहुत ही अच्छे लगे हैं। अच्छा ये जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं गुलाब जामुन से, ये गुलाब जामुन से नहीं है, ये गुलाब जामुन की शक्ल के हैं लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर जो है ना इनका जो टेक्सचर जो है टेक्सचर कहना चाहिए वो ज़रा हार्ड है सख्त है और लेकिन कमाल ये है कि इसके अंदर गोली शोली नहीं बनी हुई है बिल्कुल एक सी वो चीज़ है और ये शीरे में ही डाल के निकाली हुई है लेकिन गुलाब जामुन की तरह से है लेकिन टेक्सचर इसका अलग है बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी ये देखें ये मैंने पहले दिन जो एक प्लेट बनाई थी ना इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें ये फिश है तली हुई फिश है और उसके साथ एक समोसा टाइप की एक चीज़ है जो समोसा नहीं है वो उसके अंदर पेस्ट्री है और साथ ही गाजरों के 2 पीस मैंने रखे हुए हैं और साथ उधर लेटस है और लेटस के अंदर उनकी बनी हुई चटनियाँ हैं जो बहुत ही मज़ेदार होती हैं और ये जो एक देख रहे हैं आप इधर दाल की तरह से ये भी उनकी चटनी है और वो चीज़ का पेड़ा सा बनाया हुआ है इन्होंने वाइट जो नज़र आ रहा है और बीच में ऑलिव्स हैं। ये ऑलिव्स वहाँ पे बहुत खाए जाते हैं यानी 3 रंगों के ऑलिव्स होते थे ग्रीन काला और सुर्ख रंग के और ये अच्छा इनका वो देखें आपने वो लेटस जो है या वो कैबिज है लेटस है मेरा ख्याल है उसको इतने मज़े से इस तरह से रखा हुआ है काट के गोल गोल के नहीं उसको छोटा नहीं किया हुआ पत्ते पूरे हैं और उसके अंदर वो जो ना डालते हैं जो भी कुछ डालना चटनी है जा पीछे उसके साथ मैश पोटैटो टाइप चीज़ है और कुछ कैबिज नज़र आएगा आप गोभी के फूल हैं यानी बड़ी ही न्यूट्रिशियस डाइट उनकी होती है मिर्चें नहीं होती। तो बस ये है कि हाँ ये देखिए ये असल में पुडिंग है मैं समझी ये गुलाब जामुन है लेकिन ये खजूरें हैं ये ना नाजरीन ये खजूर है वहाँ की खजूर की भी इतनी वैरायटी थी और उसके साथ अमरूद रखा हुआ है अमरूद के साथ ये इधर बेकरी का एक स्टफ है और साथ इसके वो जैसे यहाँ पे नहीं है चॉकलेट की बार मिलती फ्लेकी बिल्कुल उस तरह का वो है और साथ थोड़ी सी आइसक्रीम है और पीछे जेली का पीस है वो रेड जो आपको वो जेली का पीस है जी। तो ये हमारी पुडिंग थी जी। अच्छा ये देखें ये इन्होंने सेवियों से जो हम अपनी ईद पे बनाते हैं सवैयां बारीक वर्मिसेली जिन्हें कहते हैं ये उनको भून के सेवियों को और उनमें शीरा डाल के थोड़ा शीरा ज़्यादा नहीं थिक शीरा डाल के तो उनको ट्रे में जमा देते हैं और बाद में टुकड़ियाँ काट के को इतनी आसान है ये बनानी लेकिन बस बनाओ तो तभी ना। तो जी हाँ जी ये देखें ये बर्फी की तरह से लेकिन ये ना बर्फी नहीं है ये ना केक है दरअसल ये केक है लेकिन केक ऐसे समझे कि केक और बर्फी के दरमियान एक चीज़ है और बड़ी ही मज़ेदार है और इन्होंने ऊपर वर्क भी लगाए थे और ये इतनी क्या कहते हैं एपिटाइजिंग लगती है। वैसे मैंने तो नहीं खाई थी क्योंकि मैं कितना खा सकती थी बीइंग डायबिटिक मैंने नहीं इसको ट्राई किया लेकिन ये देखने में बहुत ही मज़े की लग रही थी और ये चॉकलेट के ये इसमें कैशू नट्स और पता नहीं क्या क्या डाले हुए हैं नट्स डाले हुए हैं कुछ नगेट्स डाले हुए हैं और ये चॉकलेट की ये डिश बनाई हुई थी और बस खाने उन्होंने खरबूजा
एप्पल, ऑरेंज और पैशन फ्रूट और अमरूद इतने रखे होते थे अमरूद कि ये उनकी अपनी यानी पैदावार है, वो खुद उगाते हैं अमरूद और ये पैशन फ्रूट। अच्छा, हमारे यहाँ पैशन फ्रूट मैंने देखा कि मोटा मोटा होता है, यानी बड़ा बड़ा, वहाँ छोटे छोटे थे और उनमें छोटी सी गुठली भी थी एक। अच्छा, ये देखिए इस चीज़ ने बड़ा मुझे मुतासर किया। ये साइड डिश पे जैसे हम सैलड बनाते हैं ना, ये इन्होंने जो काले मसर नहीं होते, मसर की दाल को उबाल के और उसको इतना ना बहुत गलाना है ना बहुत कच्चे रहे, ये बीच में ये अच्छी इसकी पकड़ो तो अच्छा लगता है। इसमें उसको उबाल के इसके अंदर उन्होंने कुछ सिरका वगैरह डाल के और साथ उन्होंने सैलड के वो पत्ते डाले और छोटे छोटे टमाटर काटे, हम सब्ज मिर्चें भी डाल के खा सकते हैं। तो ये ना एक मुझे अच्छा लगा, ये हमने कभी आपने नहीं बनाया देखा ना, तो ये मुझे अच्छी लगी थी चीज़ वहाँ की। ये देखिए ये बीन्स हैं, ये उनका भी सैलड बना के इनमें आप केचप डाल लेते हैं या वो चिली सॉस डाल लो, साथ वो रॉकेट्स के पत्ते पड़े हुए हैं वो हैं और थोड़ा सा अनार दाना भी बीच में डाला हुआ है। और अपनी मर्जी से आप इसमें अगर सब्ज चटनी डाल लें वो भी डाल सकते हैं, मिंट डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं। और ये गाजरों का, ये तो मैंने शायद आपको एक दफ़ा बताया भी था कि मैंने गाजरों का ऐसे बनाया था, लेकिन ये इसमें अचार मसाला नहीं डला हुआ। जो मैं बनाती हूँ वो गाजरें इसी तरह लंबी लंबी चिप्स के स्टाइल की काट के उसमें अचार मसाला डाल के सरसों का तेल डाल के और उसको आप रख दो मज़े से, तो अपना 3 दिन में वो खाने के काबिल हो जाएगा, बड़ा मज़े का। तो ये तो वहाँ के थोड़े थोड़े मैंने आपको खाने जो है ना वो शेयर किए हैं आपके साथ वहाँ की सैर शेयर की है। तो देखें ये दुल्हन वहाँ की गीज़ा की, और बस ये दिन जो है ना बड़े खूबसूरत दिन थे। 2 हफ्ते मैं गुजार के आई हूँ, बहुत मज़े से खाने खाए हैं और बहुत ही अच्छा लगा है, सैरें की हैं, खूब फिरे हैं, चले हैं। ये देखें यहाँ ये नहीं जो बेचारे लोग बिल्कुल नहीं चल सकते, उनके लिए वहाँ पे टांगे हैं, अपनी टांगे नहीं है तो ये टांगे हैं वहाँ पे, तो आप टांगों में भी बैठ सकते हो, लेकिन वो बड़े पैसे वहाँ पे चार्ज करते हैं। क्यों ना करें, फिर वो उनकी कमाई है, क्यों ना करें। तो ठीक है, तो सामीन मेरा ख्याल है कि मेरा आज का प्रोग्राम बड़ा खासा लंबा हो गया। अच्छा, मैंने ना सर्दियों की 1-2 रेसिपीज़ जो है आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन वो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में करूँगी। मैंने आपको बहुत से लोगों ने फरमाइश की है कि हमें पंजीरी बनानी बताएं, तो मैं पंजीरी के लिए ना मैं आपको आज एक चीज़ लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप ना ऐसे करिए, आप ये 2 चीज़ें बाजार से मंगा के तो आप रख लें। ये जो बहुत लोगों को ये पता नहीं है, इनको कहते हैं, ये देखें ये इनको कहते हैं, ये फूल मखाने कहते हैं, फूल मखाना, ठीक है। ये फूल मखाने की आप पैकेट अपने घर में ला के रखें। और एक आप चीज़, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ये आपकी सेहत के लिए, ये है एडिबल गम, ठीक है। ये एडिबल गम, ये एक पैकेट ये ले आए, क्योंकि ये हमने पूरा तो नहीं इस्तेमाल करना, हम आधा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ये घर में होंगे ना, मैं इसलिए लाई हूँ कि अक्सर लोगों को पता नहीं होता ये फूल मखाने, वो लोग जो ना सफ़ेद मखाने होते मीठे मीठे, उनको समझते हैं, लेकिन ये फूल मखाने जो ना ये आपकी कमर के लिए, जोड़ों के लिए और बहुत ही मुफीद है, और आपकी जो जिस्म की जो सेंट्रल हीटिंग है ना, ये उसको बरकरार रखते हैं। ये आपको मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। आज का मेरा प्रोग्राम जो था ना काफ़ी लंबा हो गया है, तो अब मैं और इस प्रोग्राम में और मैं नहीं कुछ बता सकूंगी। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं आऊँगी तो मैं आपके साथ पंजीरी बनाने की ना तरकीब जो है ना वो मैं आपको बताऊँगी। अब यहाँ स्टूडियो में मेरे पास किचन नहीं है, मेरे पास कोई चूल्हा वूल्हा नहीं है, लेकिन मैं बना के उसकी शक्ल आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे लगता है। तो आप वो खाइए, छोटा छोटा, अगर आप चाहें तो लड्डू भी बना सकते हैं, अगर चाहें तो वो खुश्क खा सकते हैं। और ये थोड़ा सा 2 टेबल स्पून आपने सुबह के टाइम अपने नाश्ते में खाने होते हैं, यार किसी वक्त भी जब आपको भूख लगे आप खा लें। तो आप ना, ये मैं आपके साथ प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अगला प्रोग्राम जो ना, ये सर्दियों के सूप मैं बहुत बनाती हूँ, वो सूप मैं अपने प्रोग्राम में शेयर करती होती हूँ, लेकिन यूट्यूब में मैं आपको बताऊंगी ज़्यादा सूप बनाने की तरकीबें। और ये फूल मखानों की जो पंजीरी है बहुत अच्छी है,
آزمودہ نسخہ ہے یہ، اور یہ ہمارے جو فور فادرز ہیں نا وہ بنایا کرتے تھے، اور یہ آپ کو پتہ وہ کتنی طاقت رکھتے تھے. تو بہرحال اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے، سردی سے بچ کے رہیے، اور اگر فلو انجیکشن نہیں لگوایا نا تو وہ جا کے لگوا لیں. فلو انجیکشن ضرور لگوائیں، کیونکہ فلو انجیکشن آپ کی پروٹیکشن کرے گا اور آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ تعالی. تو بس آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور جب آپ دعا کیجیے گا تو میرے لیے بھی اور میرے بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.